So we will be doing basics of mole concept. Okay, सबसे पहले क्या था, थोड़ा सा हम बात करेंगे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का. There was this concept of Dalton's atomic theory. According to this, Dalton's atomic theory में सबसे पहले बात हुई मास की, है ना. So what were the main points of Dalton's atomic theory? That every element is made up of atoms. ठीक है, एलिमेंट किससे बना है? सेम टाइप ऑफ एटम से. Suppose if we talk about carbon, so carbon is made up of, carbon as an element is made up of similar kind of carbon atoms. ठीक है, बहुत सारे कार्बन एटम से कार्बन एलिमेंट बना है. और एक एलिमेंट की अगर हम बात करें, सो एक कार्बन एलिमेंट किस में रिजेंबल करता है? उसका मास सेम होगा. ठीक है, ईच एलिमेंट is made up of different atoms and these atoms they have same mass, then size, right? So एक particular element के जो atoms होते हैं वो किस में similar होते हैं? साइज में, मास में, है ना. तो उनकी काफी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है. उसी तरह से अगर हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स लें, सपोज वन इज हाइड्रोजन एंड द अदर इज मे बी नाइट्रोजन. So atoms of two different elements, these were atoms of same element. ठीक है, so Dalton ने बेसिक कुछ पॉइंट्स में बात किया कि atoms of same element have same mass, same size, and atoms of different element. अगर हम different element की बात करें तो different element के अगर हम atoms देखें तो उनमें क्या होता है? mass and size. अगर हम size देखते हैं तो वो different है. ठीक है, so they do not have same size, so we can write they have different mass and different size. ठीक है, their masses, their sizes, their properties are different. ठीक है, so what were the main points of Dalton's atomic theory? Talked about. Although later on हम देखते हैं कि ऐसे भी atoms होते हैं same element के जिनके masses different होते हैं. So we have isotopes, right? And there are atoms of different elements which may have same mass. We have elements which may have same mass, right? We have isobars, we have isotopes. So later on all these points were modified. अच्छा, उसके अलावा a compound is made up of two or more elements and the ratio in which the elements combine is definite. ठीक है, compound is made up of two or more elements. And then one important point जो डेल्टन का ठीक था, जिसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो क्या था कि atoms are the smallest particles that take part in a chemical reaction. Atoms are the smallest particles that participate in a chemical reaction. Smallest particles that can participate in a chemical reaction. ठीक है, and what were the other points? So this was like valid. ये बाद में भी इसी तरह से रहा, इसमें कोई modification की जरूरत नहीं पड़ी. And then he said atoms are indivisible, मतलब they could not be divided further, है ना. ऐसा नहीं था. Atoms were indivisible according to Dalton's atomic concept, right? But atoms were later on, जब further डेवलपमेंट्स हुई, रिसर्चेस हुई, तो पता चला कि एटम्स कुड बी सब डिवाइडेड. सो एटम्स कुड बी सब डिवाइडेड, और जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसमें एटम्स को डिवाइड किया, व्हाट आर दे? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जितना भी पॉइंट्स डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में था वो सब मॉडिफाई किया गया, except one point as I told you कि atoms are the smallest particles that take part in a chemical reaction. उसको छोड़कर बाकी सारे points modify किए गए. ठीक है, so one of the points of Dalton's atomic theory was कि atoms are indivisible, but it was modified as further जैसे जैसे subatomic particles का discovery होता गया तो पता चला कि नहीं, atoms could be subdivided. So अभी almost 200 subatomic particles have been discovered so far. ठीक है, almost 200. But उसमें से जो 3 fundamental particles हैं वो क्या है?
इलेक्ट्रॉन्स, नो, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किससे, एटम किससे बना है ना। सब एटॉमिक मतलब एटम से छोटे, क्योंकि डेल्टा ने ये सोचा कि एटम सबसे छोटा है, उससे छोटा कुछ भी नहीं है, तो उसने बोला कि एटम इनडिविजिबल है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। पर ये फर्दर पता चला रिसर्चर्स से कि नहीं, एटम से छोटे भी इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दीज आर द थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिससे एटम बना है, ठीक है, जो इसकी प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -1e0, प्रोटॉन 1p1, और मे बी हाइड्रोजन भी ले सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए 1h1, और वी कैन पुट H पॉजिटिव। तीनों तरीकों से हम प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूट्रॉन 0 and 1। -1 क्या है, दिस इज द चार्ज। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो सबसे क्या है, सबसे कम होता है, ठीक है, फंडामेंटल चार्ज। सो द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, इट इज -1 -1.602 into 10 to the power -19 coulombs। हाँ, -1.602 into 10 to the power -19 कूलम। तो वो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, तो उसको हम 1 यूनिट चार्ज लेते हैं। We represent it as 1, -1। And what is 0? The mass of electron. Mass, ये हमने mass को represent किया। This is for mass and this is for charge. Mass of electron बहुत negligible होता है, इसलिए उसको हम represent करते हैं 0 से, ठीक है। Mass of electron कितना होता है, नहीं, that is assumed to be 0, but actual क्या होता है, actual is 9.11 into 10 to the power -31 kilograms। -31 ये पावर है ना, 10 to the power -31। सो अगर 10 to the power, देखो कोई भी 10 to the power नेगेटिव पावर है तो क्या आएगा, 0.000, इस तरह से you will have so many zeros, 30 zeros and then this 9, ठीक है। सो बिकॉज ये बहुत छोटा वैल्यू है, इसीलिए हम इसको अज्यूम करते हैं 0। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम टू बी 0, बट एक्चुअली वैल्यू ये रहती है। सो 9.11 into 10 to the power -31 kilograms, राइट। अब प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, सेम एज इलेक्ट्रॉन, तो उसको, पर वो पॉजिटिव है, तो 1 यूनिट चार्ज इसका है। मास हम 1 यूनिट लेते हैं क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल मास है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल मास कितना है प्रोटॉन का, तो उसको हम 1 यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत नेग्लिजिबल है, तो उसको तो हमने 0 ले लिया। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव ऑलमोस्ट सेम मास, तो उसको हम 1 यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो आइदर वी यूज हाइड्रोजन फॉर रिप्रेजेंटेशन, या हम H पॉजिटिव भी ले सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोटॉन को। अब इसका जो चार्ज है वो तो सेम है, 1.602 into 10 to the power -19 कूलम, ये कूलम्स में होता है, राइट। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर हम ESU में लिखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी एक रहता है, उसमें क्या होता है, चार्ज का वैल्यू 4.8 into 10 to the power -10 ESU, ठीक है। सो समटाइम्स व्हेन यू, जब हम डायपोल मोमेंट वगैरह यूज करते हैं, डायपोल मोमेंट में जब हम चार्ज इनटू डिस्टेंस करते हैं, तो चार्ज हम ESU में लेते हैं, बिकॉज वहां पर डायपोल मोमेंट का एक यूनिट होता है D बाय। सो देयर वी हैव दैट कन्वर्जन, D बाय इनटू ESU सेंटीमीटर या ESU सेंटीमीटर इनटू D बाय, तो वहां पर हम ये यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। ये भी चार्ज का यूनिट है, 4.8 into 10 to the power -10 इसका वैल्यू रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। सेम प्रोटॉन का है बट पॉजिटिव। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1.6726 है, बट राउंड ऑफ करके हम 3 ले लेंगे, 1.673 into 10 to the power -27 kilograms, ठीक है। So it is 26, we have rounded off to 1.673.
मास ऑफ प्रोटॉन. नाउ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट सेम. अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग सेम है. इट इज 1.675 into 10 to the power -27 kilograms. तो कितना सा फर्क है देखो, सिर्फ पॉइंट्स का. यहाँ 673 है और वहां 675 है आफ्टर राउंडिंग ऑफ. सो बिकॉज डिफरेंस बहुत कम है, इसीलिए मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन. और ये दोनों काफी ज्यादा है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम सेम लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम है इनसे, तो इट इज निग्लेक्टेड. चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं, न्यूट्रॉन सो नो चार्ज. ठीक है, दीज आर न्यूट्रल स्पीशीज. सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का चार्ज, का मास. ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम कितना लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम. ओके, देन ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन इज revolving around the nucleus. So because they are present inside the nucleus, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के बाहर. ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है. अब इन दोनों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. किसको, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को. ठीक है, तो कहीं पर न्यूक्लियॉन्स वर्ड दिया है, सो इसका मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, कैसे निकालेंगे. अगर हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और हमें पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनको सम अप करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पता चल जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स सी, अब जो मास होता है एक एटम का, उसको निकालने के लिए देखो, नॉर्मली एक एटम का जो मास होता है उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म्स रिलेटेड विद एटम्स, है ना. सो एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट. मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट. अब यहाँ पर एक चीज समझना है कि जो मास होता है उसका एसआई यूनिट क्या रहता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम. ठीक है, सो मास इज जनरली मेजर्ड इन ग्राम्स और किलोग्राम्स, बट वी नो एसआई यूनिट इज किलोग्राम. एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, बट क्या है, ये जो किलोग्राम्स है या ग्राम्स है, दीज आर बिगर यूनिट्स ऑफ मास. किलोग्राम्स एंड ग्राम्स क्या है, बिगर यूनिट्स. अब एक एटम जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उसका मास भी बहुत कम होगा. तो अब कोई चीज जो बहुत कम है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो टू मेजर द मास ऑफ एन, वी यूज स्मॉलर यूनिट ऑफ मास. क्योंकि किलोग्राम और ग्राम बिगर यूनिट्स है, तो हम क्या यूज करेंगे, स्मॉलर यूनिट ऑफ मास. And what is that? That is AMU, also called as atomic mass unit. ठीक है, इसी को अभी चेंज करके हम यूनिफाइड मास भी बोलते हैं. सो आइदर बुक्स में या आपको लिखा होगा AMU दिया होगा क्वेश्चन में, या फिर यूनिफाइड मास के लिए सिंबल U यूज करते हैं. ठीक है, तो बिकॉज मास ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल, एटम दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, तो उनके मासेस भी बहुत कम होते हैं, तो हम ऐसे बिगर यूनिट्स किलोग्राम्स या ग्राम्स नहीं यूज करते. वी प्रेफरेबली यूज द स्मॉलर यूनिट, दैट इज AMU और U. AMU और U का मतलब सेम ही है. ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट
एंड अब अगर हम कंपेयर करें एएमयू को किलोग्राम से या ग्राम से, तो 1 AMU इज इक्वल टू, नहीं नॉट 1 मोल, अभी हम ये ना मास है, मास को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, एएमयू इज अ यूनिट ऑफ मास। जैसे हम किलोग्राम्स को ग्राम्स में करते हैं, हमें पता है कि 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम से मिलकर बनता है। 1000 ग्राम्स जब हो जाएंगे तो उसको 1 किलोग्राम बोल सकते हैं। उसी तरह से एटॉमिक मास यूनिट एक छोटा यूनिट है, तो एटॉमिक मास यूनिट को अगर हमें रिलेट करना है किलोग्राम से या ग्राम से, तो उनमें क्या रिलेशन है? 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kilograms, or 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. So this is the relation. देखो अभी 10 to the power minus 24 या 27 बहुत छोटा होता है, तो मतलब अगर हमें AMU को kg या ग्राम से कंपेयर करना हो तो वो इतना स्मॉलर है, ठीक है? That is why we are using AMU, because it is a smaller unit of mass, right? अच्छा, अभी हमने क्या किया? अभी हमने मास ऑफ प्रोटॉन की बात की, we talked about mass of neutron also. तो अब देखो एक बार कंपेयर करो, ये जो वैल्यू है 1.66 into 10 to the power minus 27 and mass of proton और mass of neutron, तो दोनों में कितना सा फर्क है? हाँ, सो अप्रोक्सीमेटली दे आर सेम, ठीक है? इसको राउंड अप करेंगे तो 1.67 हो जाएगा, एंड 1.67 वी हैव द सेम वैल्यू फॉर मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब 1 AMU का जितना वैल्यू है किलोग्राम या ग्राम में, उतना ही हमारा मास ऑफ प्रोटॉन है और लगभग उतना ही मास ऑफ न्यूट्रॉन है। इसीलिए हम 1 AMU को लिख सकते हैं इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है? Because the value of 1 AMU in kilograms is same as the mass of proton, so 1 AMU is approximately equal to mass of proton. ऐसे बोल सकते हैं, right? क्योंकि mass of proton भी इतना ही है, and it is approximately equal to mass of neutron, क्योंकि वो भी approximately इतना ही है, 1.67 के आसपास, जितना हमारा यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है? सो 1 AMU is approximately equal to mass of proton and also approximately equal to mass of neutron. और एक और चीज याद हमें रखनी है, 1/Na, जब हम एवोगैड्रोस नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है ग्राम्स में वो भी इतनी ही आती है, ठीक है? तो ये हमें कैलकुलेशन में हेल्प करता है, जब हम 1/Na इस तरह से यूज करते हैं तो दैट हेल्प्स इन कैलकुलेशन। व्हाट इज Na? Na इज एवोगैड्रोस कांस्टेंट, है ना? एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस कांस्टेंट बोल सकते हैं, एंड इट इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power, कितना पावर होता है? नो, माइनस नहीं, इट इज 23 एवोगैड्रोस नंबर। 1 मोल का जो वैल्यू होता है एवोगैड्रोस नंबर 6.022 into 10 raised to power 23, ठीक है? ये एक नंबर है जो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 1 से, तो जो आपकी वैल्यू आती है वो कितनी आती है? वो जो भी हमने निकाली 1.66 into 10 to the power minus 24। तो ऐसे लिखने के बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए, ठीक है? सो वी टॉक्ड अबाउट द मास ऑफ 1 एटम। तो हमने क्या देखा कि एक एटम का मास बहुत छोटा है, तो इसलिए उसके लिए हम स्मॉलर यूनिट ऑफ मास यूज कर रहे हैं, दैट इज AMU। और AMU का रिलेशन क्या होता है किलोग्राम्स के साथ, ग्राम्स के साथ? इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है? मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या इसको 1 एवोगैड्रोस नंबर भी लिख सकते हैं, उतना वैल्यू ये देगा ग्राम्स में, ठीक है? सो दिस इज 1 AMU। ओके, नाउ let's understand the representation of atom first, then we'll talk about mass further. atom को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो भी सिंबल है x उसको यहां लिखेंगे, ठीक है?
and then atomic number is written here. Atomic number Z से represent होता है, mass number A से. So जब भी हम represent करते हैं atom को, so X represents the symbol of the atom, Z represents the atomic number, and A represents the mass number. ठीक है. एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो होता है, नहीं, एटॉमिक नंबर जो होता है ना, जैसे वी हैव हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2 हीलियम. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in an element, or it is also equal to number of electrons in a neutral atom. एक एटम के पास कितना प्रोटॉन्स है या कितना इलेक्ट्रॉन्स है अगर वो न्यूट्रल स्टेट में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वो गेन या लूज भी कर सकता है, बट अगर वो न्यूट्रल स्टेट में है तो जो उसके पास प्रोटॉन्स है या इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर सेम रहता है, राइट? सपोज इफ आई टेक हाइड्रोजन एटम, सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1. That means it has 1 proton and 1 electron. If I take helium, atomic number 2, तो उसके पास कितना है? 2 प्रोटॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन. ठीक है. Similarly, lithium, atomic number 3, that means कि उसके पास जो atomic number है उतना ही प्रोटॉन्स और उतना ही इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, न्यूट्रल एटम में. तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम में बराबर है, तो प्रोटॉन्स का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर रहे हैं, इसीलिए एटम क्या होता है? न्यूट्रल. ठीक है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो एटॉमिक नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये दोनों बराबर रहते हैं ताकि एटम का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, राइट? ओके, सो दैट इज एटॉमिक नंबर. अच्छा देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज. अगर आप कोई आयन ले रहे हो, सपोज इफ आई टेक लिथियम आयन, लिथियम 1 पॉजिटिव, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहता है और एटॉमिक नंबर भी सेम रहता है. एटॉमिक नंबर फॉर लिथियम इज 3, मतलब उसके पास 3 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएगा जब वो आयंस फॉर्म में आ जाएगा. 1 पॉजिटिव का मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं आयंस में. ठीक है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2. सो इसीलिए हम न्यूट्रल एटम बोलते हैं. न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर सेम होता है. ठीक है, अदरवाइज अगर हम कोई आयन लेंगे तो आयंस लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफर कर सकता है. सेकेंड क्या हमने लिखा? मास नंबर. तो एक एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. सिंबल फॉर एटॉमिक नंबर इज Z. दूसरा हमें पता होना चाहिए मास नंबर. मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स क्या थे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो टोटल नंबर है उसको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर. ठीक है, सो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स. फॉर एग्जाम्पल 11 सोडियम 23. ये 11 क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो Z फॉर सोडियम इज 11, जिसका मतलब है कि सोडियम के पास न्यूट्रल एटम सोडियम जो है उसके पास 11 प्रोटॉन्स है और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स है. सो देयर आर 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स. 23 क्या है? 23 इज मास नंबर. मास नंबर के लिए हम A यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए. सो मास नंबर 23 का मतलब क्या है कि 23 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं मिलाकर. ठीक है, अब 23 क्या है?
टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और ये प्रोटॉन्स कितने हैं 11। वो कहाँ से पता चला? एटॉमिक नंबर से। अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है और मास नंबर पता है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सिंपली क्या है? दिस माइनस दिस, मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स। सो 23 माइनस 11 दैट इज 12। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमें निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे? मास नंबर को एटॉमिक नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। मास नंबर 23 है और जितना आपका एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर टोटल में से प्रोटॉन्स निकाल दिए तो जो बाकी बचेंगे वो न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, मास नंबर का मतलब है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। तो टोटल में से हमने क्या निकाल दिया? प्रोटॉन्स का नंबर। तो प्रोटॉन्स अगर निकाल दिए तो क्या बचेंगे? न्यूट्रॉन्स। सो देयर आर 12 न्यूट्रॉन्स इन सोडियम। ठीक है, सो समझ आ रहा है ये? सो जस्ट बेसिक्स है ना? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, मास नंबर, total number of protons and neutrons. So this represents your mass number. अब total number ये है protons और neutrons का, इसमें से हमने protons निकाल दिया। atomic number and number of protons is same. So this minus this will give you the number of neutrons. Right? Similarly, you have like अगर हाइड्रोजन के अगर हम आइसोटोप्स की बात करें, we have some species, some atomic species if we talk about. Some atomic species like we have isotopes. They are atoms of the same element. जैसे 1H1, 1H2, 1H3 इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं उनको। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो यहाँ पर क्या फर्क है इन तीनों आइसोटोप्स में? देखो इनका ये जो एटॉमिक नंबर है दैट इज सेम, डिफरेंट मास नंबर्स। हाँ ठीक है, अब एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम है दैट मींस प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन सेम है। सबके पास कितना प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन। ठीक है, सबके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। सो सबका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। दिस इज द एटॉमिक नंबर। सो सबका एटॉमिक नंबर 1 है व्हिच मींस 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, है ना? पर डिफरेंट क्या है? मास नंबर अलग है। मास नंबर अलग होने का मतलब है, देखो प्रोटॉन तो सेम है मतलब न्यूट्रॉन का फर्क है। तो अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन कितना है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दिस माइनस दिस, 1 माइनस 1 0। और सेकेंड केस में 2 माइनस 1 1, थर्ड केस में 3 माइनस 1 2। तो ये जो तीनों आइसोटोप्स है इनमें न्यूट्रॉन्स का फर्क है। प्रोटॉन्स तो सेम है, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, क्या फर्क है? न्यूट्रॉन्स का। जो आपका प्रोटियम होता है द ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, 0 न्यूट्रॉन्स। ड्यूटेरियम जो होता है दैट हैज 1 न्यूट्रॉन एंड ट्रिटियम अनदर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इट हैज 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सो आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और अगर हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की टर्म्स में बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर कर रहा है द आइसोटोप्स। Likewise, you have isobars. हाँ, can you give an example? Example याद है? And they are atoms of different element, है ना? Different element के atoms होंगे। Atoms of different element having different, obviously अगर एलिमेंट डिफरेंट है ना तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा ही, है ना? एलिमेंट्स, कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। सो इफ दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स सो दे विल हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, different having different atomic number but same mass numbers. For example, we have argon.
argon, calcium. Argon is atomic number 18, calcium is atomic number 20. ठीक है, लेकिन दोनों का जो masses है they are 40. दोनों के जो मास नंबर्स है वो क्या लेते हैं 40. सो द एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट, एक का 18 है एक का 20 है, लेकिन मास नंबर सेम है. सो हम देख सकते हैं कि ऑब्वियसली यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट है, क्योंकि 18 एटॉमिक नंबर है तो आर्गन के पास कितना है, आर्गन के पास है 18 प्रोटॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 40 माइनस 18 that is 22 neutrons, है ना. So they have usually different protons, electrons and neutrons. Calcium का atomic number 20 है, that means 20 protons, 20 electrons and how many neutrons? 40 minus 20, 20 neutrons. So individual protons, electrons, neutrons हम find कर सकते हैं from the symbol of the element. तो सिंबल में मेनली क्या रहता है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. एंड व्हाट इज मास नंबर? इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये हो गए कुछ एटॉमिक स्पीशीज, आइसोटोप्स, आइसोबार्स. अच्छा, फिर एक और कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, एटॉमिक स्पीशी होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक. So another one is isoelectronic. Iso का मतलब क्या है, सेम. क्या सेम है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, क्या सेम है, इलेक्ट्रॉन. तो इसको पढ़ते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स. आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इट हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो दे मे बी यूजुअली एटम्स और आयंस भी हो सकते हैं. एटम्स और आयंस कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होगा. सो कैन यू गिव एन एग्जांपल? कोई भी दो एटम्स या आयंस जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो. नियॉन, यस गुड, है ना, नियॉन एंड सोडियम. तो मतलब हम क्या करेंगे ना, ऐसे केसेस में यूजुअली क्या होता है, जो एटम्स होते हैं उनके आसपास के जो एलिमेंट्स है, जैसे नियॉन इज, लेट्स स्टार्ट विद नाइट्रोजन. नाइट्रोजन N3 नेगेटिव, ऑक्सीजन, फ्लोराइड, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. तो ये नियॉन के आसपास वाले एलिमेंट्स हैं. अगर हम इनके एटॉमिक नंबर्स देखें, नाइट्रोजन इज एटॉमिक नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. अब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम. ठीक है, और उतना ही प्रोटॉन्स होता है. सो 7 प्रोटॉन्स, 8 प्रोटॉन्स, 9 प्रोटॉन्स, 10, 11, 12, 13. जितना एटॉमिक नंबर है उतना प्रोटॉन्स है. अब यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए था, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 3 नेगेटिव मीन्स इसने 3 गेन किया. तो 7 + 3, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 10. ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स पोजेस करता है, लेकिन 2 गेन किया, सो दैट मेक्स 8 + 2 10. Similarly, the number of electrons in fluorine was 9. 1 negative means एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो अगेन 10. नियॉन न्यूट्रल एटम 10 ही होगा. सोडियम में 1 पॉजिटिव मीन्स लूज किया 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 1 लूज किया, 10. मैग्नीशियम ने 2 लूज किया, 10. एल्यूमिनियम वाज एटॉमिक नंबर 13, 3 लूज किया, सो 10. So all of them have the same number of electrons. So ऐसे species को क्या कहते हैं, isoelectronic. So इसमें usually question आ जाता है, they'll ask you out of the following identify the isoelectronic species. ठीक है, तो फिर accordingly we have to see कि किनका number of electrons same है. Okay, फिर एक और term रहता है isotones.
अनदर एटॉमिक स्पीशी आइसोटोन्स। तो यहाँ पर आइसो मीन्स सेम, क्या सेम रहता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे स्पीशीज या एटम्स विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल 6014 8016। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेगा? अभी हमने पढ़ा, we will subtract the mass number from the atomic number. So 14 minus 6, that gives us 8 neutrons. Oxygen में 16 minus 8, that gives us 8 neutrons. तो दोनों species के पास, दोनों atoms के पास same number of neutrons है. So when the number of neutrons are same, we call them as isotones. ठीक है ना? हमने क्या किया? 14 माइनस 6 और यहाँ पर 16 माइनस 8. So number of neutrons are same in both the species. They are called as isotones. Right? फिर एक टर्म होता है isosters. ये भी एक टर्म है जो एटॉमिक स्पीशीज के साथ रिलेटेड है. Isosters या isosteric species. So isosteric species या isosters have the same number of atoms. They contain the same number of atoms and the same number of electrons. Same number of atoms and electrons. Okay? तो यहाँ पर देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ इलेक्ट्रॉन सेम थे. यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही सेम रहते हैं. तो अगर एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों का नंबर सेम है तो आइसोस्टेरिक स्पीशीज बोलेंगे या आइसोस्टर्स बोलेंगे. फॉर एग्जांपल वी हैव CO2 एंड N2O. अब यहाँ पर लेट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एटम्स. सो एटम्स वी कैन सी कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है. सो नंबर ऑफ एटम्स इज सेम, 3 एटम्स है, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन. सो नंबर ऑफ एटम्स क्या है? दोनों जगह पर मॉलिक्यूल 3 है. एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? जितना उसका एटॉमिक नंबर है. ठीक है. सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में अगर हमने इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6. तो 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो गया. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. 8 into 2 क्योंकि 2 एटम्स है 16. 16 plus 6 is 22. तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर हमारे पास हो गए 22 इलेक्ट्रॉन्स. अब N2O का देख लेते हैं. नाइट्रोजन इज एटॉमिक नंबर 7. सो 7 इलेक्ट्रॉन्स into 2, that gives us 14. प्लस ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स. So 14 plus 8 is also 22. So both have same number of electrons and in both the molecules the number of atoms is same. है ना? तो जब atoms भी same है और electrons भी same है तब हम उनको isosteric species बोलेंगे. इसका एक बहुत important example है जहां से question आता है, that is benzene and borazine. Benzene का formula है C6H6 and borazine is B3N3H6. These two are important isosteric species from our syllabus. ठीक है, benzene and borazine. So see the number of atoms same है. Total 6 and 6 12. यहाँ पर भी total कितने atoms है? 12. बस कार्बन की जगह बोरॉन और नाइट्रोजन है. एक बार देखो कितना इलेक्ट्रॉन्स है. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? नहीं बेटा, देखो एक कार्बन के पास कितना होता है? एक कार्बन के पास एटॉमिक नंबर 6 है ना, तो 1 कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स. पर मेरे पास तो 6 कार्बन है. बेंजीन का जो फॉर्मूला है दैट इज C6, मतलब 6 कार्बन है. तो एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 कार्बन के पास कितने होंगे? 6 into 6 36. एक हाइड्रोजन के पास, एक एटम हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 6 एटम्स के पास कितने होंगे? 1 into 6. तो 36 plus 6 कितना हो गया? 42.
हमने सारे एटम्स के, वी हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स. सो सिमिलरली बोरॉन, बोरॉन इज एटॉमिक नंबर 5, तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3 बोरॉन के एटम्स है, तो 5 इंटू 3 कर लेंगे. नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 7, 3 एटम्स है तो 7 इंटू 3 हो जाएगा. हाइड्रोजन के पास कितना है, 1, 6 एटम्स है तो 1 इंटू 6. नाउ 15 प्लस 21 प्लस 6 है ना, तो 21 प्लस 6 कितना होगा, 27. 27 प्लस 5 इज 32 एंड 10 इज 42. सो हमारे पास कितना आ गया, अगेन 42 इलेक्ट्रॉन्स. तो सेम है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और एटम्स का नंबर भी सेम है. तो बेंजीन एंड बोरोजीन, दीज आर आइसोस्टेरिक स्पीशीज. ठीक है, तो इनके साथ कॉमनली ये टर्म यूज होता है आइसोस्टेरिक. ओके, तो ये कुछ एटॉमिक स्पीशीज की हमने बात किया. आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोटोन्स, आइसोस्टर्स. ठीक है, these are some common terms that we use with atoms. Okay, now coming back to the atomic mass. So अभी हम एटम से रिलेटेड टर्म्स की बातें कर रहे हैं. We are talking about things related with atom. So we talked about the atomic species, how to represent an atom, the different the subatomic particles, the 3 fundamental particles जिससे atom बना है. So अभी हम atom से related चीजों की बात कर रहे हैं. तो अभी वापस हम atomic mass पे आते हैं. तो atomic mass का मतलब क्या है, it is the mass of an atom. So अभी हमने उसका यूनिट देखा था कि एटम का मास क्योंकि बहुत कम होता है तो हम स्मॉलर यूनिट्स, एटॉमिक मास यूनिट वगैरह यूज करते हैं. अच्छा देखो, एटम किससे बना है, हमने देखा कि एटम बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से. सो बेसिकली जो एटम का मास है वो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से होगा. सो एटम का जो मास है दैट शुड बी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस उसके अंदर प्रोटॉन है, सो प्रोटॉन का मास प्लस उसके अंदर न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का मास, राइट. बिकॉज एटम का जो मास है वो उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनकी वजह से होना चाहिए. तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है ना, उसके अंदर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अब जो टोटल मास होता है, जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, उन जितने भी टोटल प्रोटॉन्स है, जितने भी टोटल न्यूट्रॉन्स है, उन सबका मास अगर हम सम अप करेंगे तो हमें एक एटम का मास पता चलेगा. क्योंकि एक एटम के अंदर क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन है. अब इलेक्ट्रॉन का मास तो हमने क्या बोला, स्टार्टिंग में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, बहुत कम होता है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते, इट इज नेग्लेक्टेड. तो इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं, क्योंकि उनका मास बहुत कम होता है तो हमने इलेक्ट्रॉन का मास तो क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया टोटल मास ऑफ एटम से. ठीक है, तो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा वो, क्योंकि बहुत कम है तो उसको यूजुअली निग्लेक्ट करते हैं. अब क्या बचा, प्रोटॉन बचा और न्यूट्रॉन. तो कितने प्रोटॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन्स है. ठीक है, सपोज मास ऑफ वन प्रोटॉन इज mp एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज p. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने p से रिप्रेजेंट कर दिया और मास एक प्रोटॉन का इतना है. तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 है तो 10 प्रोटॉन्स का मास कितना होगा, 10 इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन. सिमिलरली टोटल मास न्यूट्रॉन्स का निकालना है तो अगर एक न्यूट्रॉन का मास है mn और ऐसे हमारे पास n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो टोटल मास निकालने के लिए जो भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उसको मास ऑफ वन न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां से टोटल मास न्यूट्रॉन्स का आ जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली एटॉमिक मास किसके बराबर हो गया, प्रोटॉन्स इंटू mp
प्लस न्यूट्रॉन्स इनटू Mn, राइट। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना ना, डोंट गेट कंफ्यूज। हमने ये भी पढ़ा कि 1 AMU जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, राइट। 1 AMU का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो जहां पर हमने मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखा है उसकी जगह हम 1 AMU भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग मास ऑफ प्रोटॉन वी कैन राइट 1 AMU, ठीक है। तो क्या हो जाएगा P, बिकॉज MP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Mn, है ना। MP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Mn विच इज इक्वल टू 1 AMU। तो इन दोनों को हमने सेम अज्यूम कर लिया, तो कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा P प्लस N इंटू AMU। समझ आया ये? इज दिस क्लियर? अब क्या है, यहां से एक और चीज इंपॉर्टेंट निकल कर आती है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को हम बोलते हैं मास नंबर। तो मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। तो प्रोटॉन, ये P प्लस N क्या था? P वॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड N वॉज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सम अप करेंगे तो क्या निकलेगा वहां से? मास नंबर A, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल तो मास नंबर होता है। सो इसकी जगह हम मास नंबर A लिख सकते हैं और साथ में क्या, मल्टीप्लाइड विद AMU। सो एक एटम का मास जब हम निकालते हैं तो वो अल्टीमेटली उसके मास नंबर के बराबर ही आ जाता है, जबकि मास नंबर तो सिर्फ एक नंबर है, मास नंबर हैज नो यूनिट्स, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, एटॉमिक मास और मास नंबर में थोड़ा सा ही फर्क है। मास नंबर तो नंबर है, दैट विल टेल यू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसका तो कोई यूनिट नहीं होगा। लेकिन एटॉमिक मास भी मास नंबर के बराबर है, बट उसका यूनिट है AMU, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक मास? बोथ हैव द सेम वैल्यू। मास नंबर और एटॉमिक मास की वैल्यू तो सेम है, लेकिन मास नंबर का कोई यूनिट नहीं है और एटॉमिक मास का यूनिट क्या है? AMU। सो बाय चांस ऐसा होता है कि एक एलिमेंट का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, मतलब जो उसका मास नंबर है, उतना ही उसका एटॉमिक मास होता है AMU यूनिट्स में, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने बात की थी सोडियम की, है ना, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट सोडियम। तो सोडियम को हमने रिप्रेजेंट किया था 11Na23 ऐसे। So now if I ask you what is the mass number for sodium, mass number क्या है सोडियम का? तो क्या होगा? 23, right? And what will be atomic mass for sodium? हाँ, कितना होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है? 23 ही है ना, क्योंकि 23 ही न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मास नंबर ही होता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या लिखेंगे हम? लेकिन यूनिट क्या होगा? हाँ, ठीक है। सो मास नंबर इज जस्ट द नंबर, तो इट हैज नो यूनिट्स एंड एटॉमिक मास हैज द सेम वैल्यू। देखो हमने जो A लिखा है ना, ये A किसके लिए लिखा है? मास नंबर के लिए, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो मास नंबर के बराबर होता है। सो बाय चांस क्या है कि एटॉमिक मास भी उतना ही आ रहा है जितना मास नंबर है, ठीक है। सो मास नंबर 23 है, इसका एटॉमिक मास भी 23 है, बट यूनिट क्या है? AMU, है। सो दिस इज द डिफरेंस, दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन ये सिर्फ नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं है, और एटॉमिक मास का यूनिट है AMU। 23 मल्टीप्लाइड विद AMU, दैट इज एटॉमिक मास। नाउ वी नो 1 AMU इज इक्वल टू, अगर हम कन्वर्ट करें तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स होता है 1 AMU। तो अगर मुझे 23 AMU को कन्वर्ट करना है, सो 23 AMU कितना हो जाएगा? 23 मल्टीप्लाइड विद 1 AMU का वैल्यू, 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस। एटॉमिक मास अगर हम सोडियम का देखें, एक एटम का मास हम देख रहे हैं,
तो वो कम है, देखो कितना कम है, 10⁻⁻27 में आ रहा है अगर हम किलोग्राम्स में निकालते हैं या ग्राम्स में निकालते हैं. सो इट इज वेरी स्मॉल. एंड नंबर के टर्म्स में वैल्यू सेम है 23, बट फर्क है, ये सिर्फ नंबर है. एंड दिस इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मल्टीप्लाइड विद AMU. एंड AMU कितना होता है, दिस वैल्यू. सो मास ऑफ सोडियम इन किलोग्राम्स इतना हो जाएगा, AMU की टर्म्स में इतना होगा, और मास नंबर 23 ही है. ठीक है ना. मास नंबर इज यूनिटलेस whereas atomic mass has units. So यहां से डायरेक्टली हम एटॉमिक मास देख सकते हैं. तो ये क्या है यहाँ पर कि जो मास नंबर और एटॉमिक मास का वैल्यू है वो सेम है. यहां से हमने ये रिलेट करना है कि मास नंबर और एक एटम का जो मास होता है, दिस इज मास ऑफ वन एटम इन AMU. सपोज इफ आई राइट डाउन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, चलो काफी है. So their representation is 1H1, 2He4. ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. 1H1, this is how we represent. So what is the mass number? मास नंबर क्या है, मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक मास इन AMU. ठीक है. So this is your mass number A and atomic mass in AMU. So mass number क्या है, 1, और atomic mass भी 1 ही है, बस यूनिट क्या है, AMU. ठीक है, बस ये हमने ध्यान रखना है. मास नंबर और एटॉमिक मास है सेम. सिमिलरली इफ आई टेक हीलियम, हीलियम का मास नंबर क्या है, 4. सो मास नंबर इज 4 and what is atomic mass, वो भी 4 है but AMU. Likewise 6C12. So 12 is the mass number for carbon. So 12 is the mass number, मतलब इसके पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलाकर टोटल 12 है. और अगर हम इसका मास देखें तो वो भी 12 AMU होगा. ठीक है. Likewise नाइट्रोजन 7N14 और सल्फर, सल्फर का बताओ क्या होता है, 16 सल्फर 32. Now tell me the mass number for these two. नाइट्रोजन एंड सल्फर के लिए मास नंबर और एटॉमिक मास. मास नंबर 14, एटॉमिक मास कितना होगा, एंड सल्फर, नहीं बेटा 16 उसका ना एटॉमिक नंबर है, मास ऊपर वाला होता है, 32 है उसका मास नंबर. मास नंबर पे फोकस करना है. सो मास नंबर कितना है, 32 है. ठीक है. सो 32 उसका मास नंबर है, और एटॉमिक मास कितना लेंगे, 32 ही लेंगे, 32 AMU. ठीक है. मास नंबर और एटॉमिक मास का वैल्यू सेम रहेगा, बस हमने यूनिट्स का ध्यान रखना है. मास नंबर का कोई यूनिट नहीं है क्योंकि वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बता रहा है, और जो एटॉमिक मास है उसका यूनिट रहेगा AMU. सो ध्यान रखना है कि मास नंबर एंड एटॉमिक मास हैज द सेम यूनिट्स. Okay, now let's see.